चांद पर जय हो। भारत की गौरव गाथा में एक अध्याय और जुड़ गया है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद से 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक बार फिर अपने देश के वैज्ञानिकों पर गर्व कर रहे हैं और कह रहे हैं, चांद पर जय हो। 3, 2, 1. We have ignition. और आसमान को चीरता नजर आया चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है और अपनी 3.84 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा पर निकल चुका है। उसे चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 42 दिन लगेंगे। LVM-3 रॉकेट में ने इसे 189 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ दिया है। अब आगे की यात्रा चंद्रयान 3 खुद करेगा। जानिए चंद्रयान 3 कहां लैंड करेगा, इस बार किस तरह इसके बदलाव किए गए हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। 3, 2, 1. We have ignition. ये अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की एक और छलांग है। भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद धरती से चांद के सफर पर निकल पड़ा। इसरो का बाहुबली LVM-3 रॉकेट चंद्रयान 3 को लेकर रवाना हो गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर इसे लॉन्च किया गया और मात्र 16 मिनट 15 सेकंड में रॉकेट ने इसे 179 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ दिया। चंद्रयान 3 3,84,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर निकल चुका है। इसे चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 42 दिन लगेंगे। इस बार चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट ने जिस ऑर्बिट में छोड़ा है वो 170 गुना 36,500 किलोमीटर वाली अंडाकार जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है। पिछली बार चंद्रयान 2 के समय 45,575 किलोमीटर की कक्षा में भेजा गया था। इस बार ये कक्षा इसलिए चुनी गई है ताकि चंद्रयान 3 को ज्यादा स्थिरता प्रदान की जा सके। चंद्रयान 3 चंद्रमा की बाहरी कक्षा में 5 अगस्त के आसपास प्रवेश करेगा। ये गणनाएं तभी सही रहेंगी जब सब कुछ सामान्य स्थिति में होगा। कोई तकनीकी गड़बड़ी होने पर इसमें समय बढ़ सकता है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की 100x100 किलोमीटर की कक्षा में जाएगा और इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और फिर 23 अगस्त को डीबूस्ट करने का कमांड दिया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरना शुरू करेगा। 25 अगस्त को शाम 6 बजे के लगभग ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मैंजिनस यू क्रेटर के पास उतरेगा। Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, the precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle.
And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C-25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated, the system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart and hard work of all the ISRO team members and the work culture of ISRO and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of ISRO team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia, and the various review fora. Thank you. Jai Hind. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. चंद्रयान 2 के 3 साल 11 महीने 23 दिन बाद भारत में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है। पिछली नाकामी को देखते हुए 140 करोड़ भारतीय सांस रोककर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देख रहे थे और जैसे ही वो कामयाबी के साथ चांद की ओर रवाना हुआ तो देश विदेश में रहने वाले हिंदुस्तानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस बार इसरो ने पिछली गलती से सबक लेकर लॉन्चिंग को सफल बनाने के सारे प्रयास किए। इस बार चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए इसरो ने फूंक कर कदम रखे। इस मिशन में विक्रम लैंडर के इंजन पिछली बार से ज्यादा ताकतवर है। पिछली बार जो गलतियां हुई थी उसमें सबसे बड़ी वजहों में से एक कैमरा था जो आखिरी चरण में एक्टिव हुआ था, इसलिए इस बार उसे भी सुधारा गया है। इस बार विक्रम लैंडर के सेंसर्स गलतियां कम से कम करेंगे, उन्हें तत्काल सुधारेंगे। इन गलतियों को सुधारने के लिए विक्रम के पास 96 मिलीसेकंड का समय होगा, इसलिए इस बार विक्रम लैंडर से ज्यादा ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कमांड एंटीना लगाए गए हैं, यानी गलती की संभावना ना के बराबर। वहीं इस बार मिशन में विक्रम लैंडर के चारों पैरों की ताकत को भी बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नया सोलर पैनल लगाया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 मीटर गुना 500 मीटर चुना गया था, तो इससे सबक लेकर इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर रखा गया है। इस बार कोशिश रहेगी कि विक्रम लैंडर इतने बड़े इलाके में अपने आप सफलतापूर्वक उतर जाए। वहीं विक्रम लैंडर यदि सफलता के साथ चांद की सतह पर उतर जाता है तो भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश होगा जो ये कारनामा कर पाएगा। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन ही अंतरिक्ष में इस लेवल पर पहुंच पाए हैं। यदि ऐसा हुआ तो स्वतंत्रता दिवस के बाद भारत को चंद्रयान 3 की सफलता के साथ एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है और अब विज्ञान के क्षेत्र में भी दुनिया भारत का लोहा मानने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर से दोपहर 2:35 पर छोड़ा गया। चंद्रयान 3 का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। पर क्यों, आखिर दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा क्या है जिसे चंद्रयान 3 खोजेगा? देखिए इस खास रिपोर्ट में। 3, 2, 1. We have ignition. नया अध्याय, कर्व,
बधाई। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर पीएम मोदी से लेकर नेता अभिनेता तक सभी लोग सोशल मीडिया पर देश के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे थे। देश से लेकर विदेशी मंच तक पर भारत के इस मिशन की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे थे। पढ़े भी क्यों नहीं जाएं, आखिर पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भारत की गौरव गाथा में अब एक और अध्याय जो जुड़ चुका है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन समेत दुनिया की नजरें भी हैं। चीन ने कुछ साल पहले दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर लैंडर उतारा था। इतना ही नहीं, अमेरिका तो अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। भारत भी विज्ञान की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। दक्षिणी ध्रुव वो जगह जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर वहां सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। अब सवाल यही है कि आखिर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा क्या है? आखिर क्यों दुनिया चांद पर जाने को उतारू है? तो इसका जवाब ये है कि चंद्रयान 3 के 3 मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। वहीं जैसा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है वैसा ही चांद का भी है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अटलांटिका में है, पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका, और ऐसा ही चांद का दक्षिणी ध्रुव है सबसे ठंडा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा पर नजर आएगा। वो चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस कारण यहाँ तापमान कम होता है। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने एक रिपोर्ट में बताया कि 1998 में नासा के एक मून मिशन ने दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाया था। नासा का कहना है कि हाइड्रोजन की मौजूदगी वहां बर्फ होने का सबूत देती है। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। यहाँ सूरज की रोशनी भी बहुत कम पड़ती है। जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है वहाँ 54 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, पर जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पानी और खनिज हो सकते हैं, और बस इसकी खोज के लिए इस मून मिशन को किया जा रहा है। चांद का दक्षिणी ध्रुव काफी रहस्यमय है। दुनिया अब तक इससे अनजान है। अंदाजा है कि यहाँ जमा पानी अरबों साल पुराना हो सकता है। इससे सौर मंडल के बारे में काफी अहम जानकारियां हासिल करने में मदद मिल सकेगी। नासा के मुताबिक अगर पानी या बर्फ मिल जाती है तो इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि पानी और दूसरे पदार्थ सौर मंडल में कैसे घूम रहे हैं, और संभव हो सकता है कि चांद पर नई दुनिया बसाने के भी प्रयास हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 का मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। दक्षिणी ध्रुव वो जगह है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका है। अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर वहां सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। 3, 2, 1. We have ignition. चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन बताया जा रहा है। इसरो ने जनवरी 2020 में चंद्रयान 3 लॉन्च करने का ऐलान किया था। इसे 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोविड की वजह से इसमें देरी हो गई। इसका मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना है।
इससे पहले इसरो साल 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च कर चुका है। तब चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। 3 महीने बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसका मलबा ढूंढा था। अब इसके 4 साल बाद फिर इसरो चंद्रयान 3 के जरिए लैंडर और रोवर को दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी भारत चांद पर दस्तक दे चुका है। साल 2008 में इसरो ने अपना पहला मून मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। तब इसमें सिर्फ ऑर्बिटर था जिसने 312 दिन तक चांद का चक्कर लगाया था। चंद्रयान 1 दुनिया का पहला मून मिशन था जिसने चांद में पानी की मौजूदगी के सबूत दिए थे। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। इसमें ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी भेजे गए। हालांकि ये मिशन ना तो पूरी तरह सफल हुआ था और न ही फेल। चांद की सतह पर लैंड करने से पहले ही विक्रम लैंडर टकरा गया था और इसकी क्रैश लैंडिंग हुई। हालांकि ऑर्बिटर अपना काम कर रहा था। ऐसा नहीं है कि चांद पर अब तक सिर्फ भारत ही पहुंचा है, बल्कि इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन भी चांद पर दस्तक दे चुके हैं। जून 1966 से जनवरी 1968 तक अमेरिका ने चांद पर 7 बार रोबोटिक मिशन भेजे। इनमें से 5 सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहे। फिर रूस ने 1959 से 1976 के बीच 24 मून मिशन लॉन्च किए। इनमें से 15 सफल रहे, जबकि चीन ने चांग सीरीज में 2007 से अब तक 5 मिशन भेजे और सभी सफल रहे। अब एक बार फिर चांद पर इसरो ने अपना मिशन भेजा है। चंद्रयान 2 की गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई अहम बदलाव किए गए हैं। अगर चंद्रयान 3 पूरी तरह कामयाब हो जाता है तो अंतरिक्ष विज्ञान में भारत एक नया रिकॉर्ड बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। Three, 2, 1. We have ignition. आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।